Good morning, students. So today we are going to start our next topic of chapter 9. Chapter 9, measures of central tendency, arithmetic mean. Okay. Now the next topic is arithmetic mean in special cases. Arithmetic mean in special cases. So students, the calculation process of mean is different under some special circumstances. So let us discuss these special cases. So mean in special cases. Yes, mean in special cases. Okay. Yes, students, first is cumulative frequency distribution. First is cumulative frequency distribution. Frequency distribution. Okay, yani it means less than or more than. Less than or more than. आप पे जब होता है ना लेस देन और मोर देन की सीरीज दी हुई होती है, तो वो आपकी कौन सी सीरीज होती है स्टूडेंट्स? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. ओके. सेकंड इज मिड वैल्यू आर गिवन. सेकंड इज व्हेन mid values are given. Okay, यानी mid point of class intervals are given. Mid points of class intervals are given. Okay. Third is inclusive class intervals. Third is inclusive class intervals. Intervals. यानी classes by type. Classes, it means कि classes of type 10 to 19, 20 to 29. Okay. So are given. This type of frequencies. This type of series. व्हेन क्या होगा जब सीरीज में आपकी फर्स्ट वाले की जो अपर लिमिट होती है सेकंड वाले की लोअर लिमिट के इक्वल ना हो, देन वी कॉल इट inclusive class interval series. Okay. Now the next is open and series. Open and series. Open and series, it means lower limit of first class and upper limit of last class not given. Lower limit of first class and upper limit of last class are not given. जब आपको क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट और जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट आपको गिवन ना हो, ठीक है, आपको वो गिवन ना हो, तो वो कौन सी सीरीज होगी आपकी? ओपन एंड सीरीज. एंड द नेक्स्ट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज. Unequal class interval series. Class interval series. Okay, when class intervals are not equal. Okay, so students, first of all, it means in which cumulative, yes, cumulative frequency distribution series, less than or more than series,
first convert it into simple frequency distribution सीरीज. ओके, सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. देन फिर हम अर्थमेटिक मीन, देन वी विल कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन. ओके, सो इन मिड वैल्यूज, व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन, जब मिड वैल्यूज आपके पास ये गिवन होते हैं, so when mid values are given, so no need to convert mid values into class intervals. हमें जरूरत ही नहीं है इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की. सो कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर्स. हम जैसे आपको मिला हुआ है, मिड वैल्यूज मिली हुई है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें. Now the third is inclusive class interval series. So inclusive class interval series in which no need to convert into exclusive series. Okay, this is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ये आपकी कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज. और 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, this is our inclusive class interval series. तो अगर आपके पास ये गिवन है, देखिए या तो आप क्या करें कि इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो रोंग नहीं होगा. नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. सो कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर्स. ओके, नाउ द फोर्थ इज ओपन एंड सीरीज. ओपन एंड सीरीज यानी कि क्या है? मिसिंग लिमिट्स नीड टू बी अज्यूम डिपेंडिंग ऑन पैटर्न ऑफ क्लास इंटरवल. आपको जो भी क्लास इंटरवल का पैटर्न गिवन है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने जो मिसिंग लिमिट है आपके पास, उस मिसिंग लिमिट को आप वहां पर लगा दें. ओके, अपना क्लास आप देखिए आपके पास जो क्लास इंटरवल है उसमें 5 का डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है, 15 के डिस्टेंस पर लिखा हुआ है. तो उसी को ही देखते हुए आपने जो मिसिंग लिमिट होती है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं. ओके, then last is unequal class interval series, so in which no need to make class intervals equal. Calculate mean in usual manners. आपको इसमें भी कोई नीड नहीं होती कि हम इससे क्या करें, चेंज करें. ओके, नाउ द फर्स्ट सीरीज इज, स्टूडेंट, फर्स्ट सीरीज इज cumulative series. Cumulative series. Okay, or less than or more than. Okay, so students, when the data is given in the form of less than or more than for all items in the series, so it is called cumulative frequency distribution. ओके, जब आपके पास डाटा लेस देन या मोर देन के फॉर्म में गिवन होते हैं, तो इस तरह इस वाली सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. सो टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, such cumulative frequency distribution has to be converted into a simple frequency distribution. Okay, so now we take an example. Yes, first profits are given. Profit rupees in crore. Okay, now number of companies. Okay, so this is less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70. Okay, and the number of companies 5, 22, 48, okay, 60, 83, and 100. Okay, so first of all, we convert the series into simple frequency distribution series. Okay, so अब
क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस है सब में। लेस देन 20 मतलब अब आप क्या करेंगे, 10-10 का क्योंकि गैप है तो आप 10 से ही लेंगे, तो 10 का ही गैप यहाँ पर रखेंगे। सो आप क्या करोगे, प्रॉफिट इन करोड़, प्रॉफिट्स इन करोड़, रुपीज इन करोड़, this is x. So 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. Okay, students. Now the number of companies, number of companies. Yes, ये आपको समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपनीज, जो नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर गिवन है एफ, ये हमारे पास क्या है गिवन, ये अभी हमारे पास गिवन है सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये गिवन होती है, अगर आपके पास लेस देन एंड मोर देन सीरीज आर गिवन, देन द फ्रीक्वेंसी जो आपके पास होगी वो आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, वो आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्योंकि लेस देन 20 का मतलब लेस देन 20 में कितनी कंपनीज आई, नंबर ऑफ कंपनी 5। लेस देन 30 यानी 30 से नीचे जितनी भी सभी कंपनीज थी, तो उसमें ये वाली जो कंपनी है लेस देन 20 में 5 थे, तो वो 5 भी इसमें 30 में ऐड है। ओके, लेस देन 40 का मतलब कि 40 से नीचे जितनी भी सभी थी, यानी इसमें जो ये जो है ना आपके 22 टोटल मिला के ये इसमें ऐड है। तो ये आपके पास इस तरीके से क्या गिवन है, ये आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। सो सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर आपने इसको कैसे निकालना है, जैसे पहला तो हो गया लेस देन 20, लेस देन 20 में 5 फ्रीक्वेंसी है तो सेम ये तो 5 ही रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं ये तो 5 ही रहेगी। अब लेस देन 30 में 22 हमें गिवन है, तो 22 में से अगर हम लेस देन 25 वाली माइनस कर दें तो हमारे पास कितनी बचेगी, 20 टू 30 की फ्रीक्वेंसी बचेगी। तो 22 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 17। ओके, देन लेस देन 40 आपको कितना दिया हुआ है, 48। सो 48 में से अगर आप पीछे लेस देन 30 वाली माइनस कर दें तो आपके पास कितना बचेगा, केवल आपके पास 30 टू 40 वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास रह जाएगी। तो ये कितनी होगी, 26। इसी तरीके से आपका सबका यही सेम लॉजिक है कि अगर आप लेस देन 50 में करते हो तो लेस देन 40 वाली सारी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तो आपके पास 40 टू 50 वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। अगर आपको लेस देन 60 की निकालनी है, ठीक है, यानी कि 50 टू 60 वाली निकालनी है तो लेस देन 50 वाली सारी माइनस कर दो फ्रीक्वेंसी इसमें से, तो आपके पास सिर्फ किसकी बचेगी, 50 टू 60 वाली। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सबको ऐसे माइनस करते जाते हैं। ओके, 22 में से 5 माइनस करते, 48 में से 22, 60 में से 48, 83 में से 60 एंड 100 माइनस 83। Okay, so 12, then 23, and after that 70. So now we get the simple frequency f. Okay. Yes. Now the simple. Now we calculate mid value. Okay. So first of all we calculate mid value. So mid value m. So student 10 to 20, 10 plus 20 divided by 2. This is 15. Now the next is 25, then 35, 45, 55 and 65. Okay. Now we calculate d deviation. How to calculate d deviation? What is the formula? Mid value minus assumed mean. ओके, सो अज्यूम्ड मीन हम यहाँ पर कितना लें, हमने मिड वैल्यू में से ही अज्यूम माना है क्योंकि यही हमारा एक्स है, हम 45 को मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू 45, सो ए इज इक्वल टू 45। ओके, सो 45, सो यहाँ पर अगर आप माइनस करें
15 minus 45 minus 30 minus 20 minus 10 0 10 20. Okay, now the next is d dash. D dash, d by, yes, d dash. D dash, what is the यानी कि now we calculate step deviation d dash. So how to calculate step deviation? This is d by c. क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना, c is equal to 10. 10 से सारा सीरीज हमारी डिवाइड हो रही है. सो d by c. सो ये होगा -3 -2 -1 0 1 2. Okay, now we calculate f d dash. So जो हमारे पास f, this is our f, this is our f. So okay, so f and d dash. Okay, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करनी है. 5 multiply -3 -15. Yes, -15, then -34, after that -26, then 0, then +23 and 34. So now summation of fd dash is equal to माइनस वाली अलग प्लस कर लो और प्लस वाली अलग से. ओके, सेपरेटली दोनों को प्लस करके फिर करके माइनस कर दीजिए. फिर दिस इज वी गेट -18. Now summation f frequency is equal to 100. Okay, so now we calculate arithmetic mean by the step deviation method in a continuous series. Actually, यहाँ पर हमारा continuous series होगी ना frequency distribution series. So what is the formula? Formula of step deviation method to calculate the arithmetic mean in a frequency distribution series. This is, yes, x bar is equal to a plus summation fd dash by summation f multiply c. Okay, now putting the values in this formula. So we get 45 plus -18 divided by 100 multiply 10. Okay, and when we solve this equation, so we get rupees 43.2 crores. Okay, so this is our arithmetic mean. Okay, students, clear? Now the next is, yes, now we taken another example and the series is more than series. Okay, so from the following distribution of marks obtained by 50 students in statistics, okay, we calculate average marks. So marks are given. Marks more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50. Okay, and the number of students, this is 50, 45 and 38, 26, 10 and 4. Okay, so now first of all we convert this series into frequency distribution series. Okay, so वही सेम हमने करना है, सिमिलर प्रोसेस हमने यहाँ पर करनी है. मोर देन 0, सो मोर देन 0, मोर देन 10. व्हाट इज द गैप? क्या गैप है यहाँ पर? 10 का गैप है. ठीक है, हाउ मच 10 का गैप आ गया. तो 10 का गैप है, इट मींस यहाँ पर मोर देन में है ना, तो मोर देन में क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Okay, so marks, yes, marks, this is our x. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Okay students, तो स्टूडेंट यहाँ पर भी जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, ये भी आपकी क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है.
ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। रीजन क्या है देखिए, मोर देन जीरो का मतलब इन्होंने सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी थी जीरो से अब की सब हर जितनी भी गिवन होंगी सब होंगी। तो मोर देन जीरो का मतलब यहाँ पर जो ये 50 दिया हुआ है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज जितनी भी है उन सबका टोटल ऐड करके आपके पास 50 आया है। मोर देन 10 का मतलब यहाँ पर सिर्फ 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो 10 से अबव वाली सारी फ्रीक्वेंसी 45। मोर देन 20 में वही 20 से अबव वाली सारी फ्रीक्वेंसी 38, यहाँ तक कि आपके पास मोर देन 10 तक की फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ओके, उसमें ऐड नहीं है और सारी फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही मोर देन 30 में 30 से अबव वाली, मोर देन 40 में 40 से अबव सारी फ्रीक्वेंसी, और मोर देन 50 में 50 से अबव। ये आपके पास क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ first of all we convert it into simple frequency. Okay, so number of students, frequency f. So देखिए मोर देन 050, मोर देन 050, सो हमने सिर्फ निकालनी कितने से कहां तक के, 0 to 10 तक की निकालनी है। सो अगर हम मोर देन जीरो में से की फ्रीक्वेंसी में से मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास रह जाएगी। सो 50 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। सो 5 जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट आपने ऐसे ही करना है। 50 में से 45 माइनस करा, 45 में से अगर हम 38 माइनस कर दे तो हमारे पास 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी की आपके पास मिलेगी। सो ये कितना आएगा, 7। ओके, ऐसे ही हम माइनस करते जाएंगे, 38 में से 20 से 26 में से 10, 10 में से 4, 4 में से 0। ओके, सो वो हमारे पास क्या होगा, 12, 16, 6 and 4। Okay, now we calculate mid value. So first of all, we calculate mid value m. Okay, so 0 plus 10 divided by 2, 5, then 50, 25, 35, 45 and 55. Okay, so now after that we calculate d deviation. D is calculated by m minus a. M mid value, a assumed mean. So a assumed mean. Yes, so in this series we assume 25. Okay, so 25 हमने assume कर लिया। So 5 minus 25 minus 20 minus 10, 0, 10, 20, 30. Okay, now the next step is calculate step deviation d dash. So what is the formula, d by c, and c यहाँ पर क्या निकल सकता है, 10, so c is equal to common factor is equal to 10. Okay, so this is -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay, now we calculate f d dash. So now this is our f. What is this is our f, and this is d dash. Okay, so 5 multiply -2, -10, then -7, 0, 16, 12, and 12. Okay, so summation of f d dash is equal to 23. Okay, and summation f is equal to 50. Now, what is the formula to calculate arithmetic mean in the frequency distribution series by step deviation method? This is okay. So x bar is equal to a plus summation f d dash by summation f multiply c. Okay, now putting the values in this equation, we get equal to 25, 25 plus 20, 23. 23 divided by 50 multiplies. C means 10. Okay, 10. Now
solve this equation and we get x bar is equal to 29.60 marks. So this is our arithmetic. Clear, students? So students, so that's all for today. Have a good day.